Good morning, class. Hope you guys are good, revising all the previous chapters and giving lot of mocks. Today's chapter name is Making of the Constitution. We are going to cook our constitution today, and we will see that how many ingredients from which country we have adopted. But before that, let's do a quick recap. हमने पहली क्लास में बात की थी, प्रियम्बल के बारे में बात की थी कि कैसे बना हुआ है, 4 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, दैट इज सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड डेट. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट शेड्यूल ऑल्सो कि पहले 8 थे, फिर बढ़ के 12 हो गए. प्रियम्बल को प्रस्तावना कहते हैं, शेड्यूल को अनुसूची कहते हैं. देन इन द थर्ड क्लास वी टॉक अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. दिस वॉज द प्रियम्बल, आई शोड यू देयर. This was the schedule. You can see the list. That first was about the name of state and union territory. Second was about the emolument and salary. The third was about the oath and affirmation. And fourth was about the allocation of seat in council of state. Like this and all. Okay. You can see that previous classes also. In the very last class, we talk about historical background. कि अगर कहीं एक ब्रिटिश रूल नहीं, तो हमने क्या किया था, उसे डिवाइड किया था 2 पार्ट में. एक कंपनी रूल था, एक क्राउन रूल था. In company rule, we talk about Regulating Act of 1773, then Pitt's Indian Act of 1784, फिर चार्टर एक्ट के बारे में बात की थी 1830 के बारे में, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर लास्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1853. दिस वॉज द लास्ट चार्टर. उसके रिवॉल्ट हो गया था 1857 का. दिस ब्रिंग यू टू द ऑर्डर ऑफ चेंज, दैट कंपनी रूल चेंज इनटू क्राउन रूल में चेंज हो गया था. क्राउन रूल में फिर हमने बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के बारे में बात की थी, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892, फिर 1909. इसके बाद फिर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990, जिसे मैंने एक और नाम दिया, जिसे मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 को मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, 1990 को मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के बारे में बात की. उसके बाद फिर हमने लास्ट में हमने बात की थी, that is Indian Independent Act of 1947. 2 dominant states were created, which were India and Pakistan. Now, today's part. Chapter name is Making of the Constitution. Give a heading, Making of the Constitution. A short story कि पहला वो पर्सन कौन था जिसने प्रपोज किया इस आइडिया के बारे में कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो जहाँ पे इंडियंस हों जो अपनी खुद की संविधान लिखें. दिस आइडिया वॉज ब्रॉट in 1934 by M.N. Rao. Later, Indian National Congress tried in 1935. Later, Jawaharlal Nehru on behalf of Indian National Congress 1938 में उन्होंने फिर से ट्राई किया. This was accepted in August offer. उन्होंने बनाया नहीं लेकिन ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था. A proposal was sent by Cripps through the Cripps mission, but that proposal was not accepted by Muslim leagues. Finally, a cabinet mission was sent to India. The Constitutional Assembly was formed as per the guideline of suggested by cabinet mission plan in 1946. इनकी गाइडलाइंस के अंदर जो कैबिनेट मिशन 3 लोग के मेंबर की ये कैबिनेट थी, जिसमें कि इन्होंने कुछ गाइडलाइन दी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन कर दिया 1946 में. These were the 3 persons who came to India for that for Constitutional Assembly, that how Constitutional Assembly will be framed. So the first person, this person is, let me bring that pointer. Yeah. He is Lawrence, he is Cripps, and he is Alexander. These are the 3 persons who came to India to form that Constitutional Assembly. Now, composition, कैसी composition थी, उनके numbers क्या थे वहाँ पे. तो 389 members थे पार्टीशन से पहले, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो फिर ये नंबर घट गया. देखिए, दिस इज सॉरी दिस समथिंग वेंट रॉन्ग. ओके, दिस नंबर that is 389 decreases after partition. It's become 299, in which 229 from the British provisions and 70 are from the princely state. And one more thing I want to add, क्या मैंने बताया, मैंने कहा कि 389 मेंबर्स थे. क्या हुआ,
पार्टीशन के बाद ये नंबर डिक्रीज हो गया। ऑब्वियस बात है, जब पार्टीशन होगा तो आधे लोग उधर चले जाएंगे, जो उन मेंबर्स में भी सिर्फ चले गए थे। दिस मेंबर क्या हुआ, फिर उसके रिड्यूस हो गया, 299 हो गए मेंबर्स। उसमें से भी ये 229 ब्रिटिश प्रोविजन के थे और ये 70 प्रिंसली स्टेट के थे। इसमें भी जब 389 मेंबर्स थे तो उसमें से 15 वुमेंस थी। पार्टीशन के बाद 9 वुमेंस केवल रह गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Sachidanand Sinha was the first temporary president, first and only temporary president. This provision we have taken from French. In French, this temporary provision, temporary president concept was there. Now later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president, and as a vice president, that is Mukherjee. Now, this was the some committees name and their chairperson name. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे भीमराव अंबेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू थे और स्टेट्स कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद एंड रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी बता चुका, 2 बार लिख दिया मैंने। The drafting committee was very important. So, because they were the one who actually proposed that what should be there in the constitution, in our constitution, which was headed by Bhimrao Ambedkar. And look at the chronology. I will use it in the image also, the same numbers. So, Bhimrao Ambedkar, Gopal Swami, that A. Krishna Swami Iyer, K.M. Munshi, Syed Muhammad Sadullah Khan, Madhav Rao, and T.T. Krishnan Acharya. See, Madhav Rao was replaced by B.L. Milton because he used to be very sick, so he was not able to attend most of the meetings. That's why he was replaced by B.L. Milton. And T.T. Krishnamacharya was died in 1948, so he was also replaced. अच्छा, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो हमारे जो आर्टिकल्स थे वो 395 थे ओरिजिनली, जो कि अब इंक्रीज हो चुके हैं, 440 हो गए हैं अराउंड। And after that, there were 8 scheduled, now 12. I told you about the 4 amendments. उसके बाद जो पार्ट थे, 22 पार्ट थे उस टाइम में, अब कितने हो गए थे? 25 हो गए। नो, आई टोल्ड यू ना, जो लिस्ट मैंने बताई आपको वो ये लोग हैं। क्या है पहला नाम, क्या नाम है? लेट मी ब्रिंग दैट दिस थिंग। ही वॉज भीमराव अम्बेडकर द चेयरपर्सन, ही वॉज जज कृष्ण स्वामी, एंड ही वॉज K.M. Munshi, he was Gopal Swami Iyer, Sadullah Khan, Syed Muhammad Sadullah Khan, he was Madhav Rao, he was T.T. Krishnamacharya. And why I showed the image, my basic motive was that you should also know that who was our drafting committees member they look like, because हमें आज के हीरोइन की पिक्चर्स क्लियरली पता होती हैं कैसे दिखते हैं, but we are not the actual hero and heroines picture we are not aware, but in this only heroes. Okay, salient feature, this is the basically second chapter, next chapter, but I added this because these are some small chapters, so that's why I added 2 more chapters in this. Salient feature, what was salient feature जो हमारे संविधान बन के तैयार हुआ, उसकी विशेषता क्या रही? फर्स्ट थिंग, आर कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड व्हेन आई से दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शुड बी सम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ऐसा कोई संविधान है जो लिखा ही नहीं हुआ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। व्हेन आई से दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन पॉलिटिक्स, इट मीन्स वेल अरेंज्ड, दैट कहाँ पे क्या लिखा है, एक जगह कंपैरिजन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से दैट ब्रिटिश डू नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स दे हैव नो कंपैरिजन। कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, कन्वेंशंस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, लेकिन रिटन भी कुछ होता है। But basically when I say written constitution, that means we are well arranged in a document thing. We have put it all the information. We have fundamental rights, pointer, fundamental rights and duties. We have directive principle, DPSP, to the state कि whenever they make a policy, they should keep in mind directive policies and all. Judicial system we have, universal adult franchise, रोड, सबको वोट करने का अधिकार है। और when I say this, try to remember that time when we were independent. Many countries, I am telling you, many countries were there who were not giving rights to women, poor, who were not paying tax. There were different criteria.
जस्ट फिल्टरिंग कि कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो वोट नहीं करने का अधिकार रहेगा, लेकिन एज एन इंडिया सबको वोट करने का अधिकार था. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन दिस, दैट इज ऑन 61st अमेंडमेंट द एज वॉज रिड्यूस. अर्लियर इट वॉज 21, उसको घटा के 18 कर दिया गया था. देयर सम पार्ट रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. व्हाट डज इट मीन? जब मैं रिजिड कहता हूँ मतलब कुछ हिस्से सख्त हैं हमारे संविधान के जिन्हें बदलना मुश्किल है. फॉर एग्जांपल उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, आर्टिकल 368 का यूज़ करना पड़ता है. तो कुछ रिजिड हिस्से भी हैं, कुछ फ्लेक्सिबल भी हैं जो ईजिली चेंज हो जाते हैं. तो वी आर बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. ये आर द फीचर्स. नाउ जो हमने अभी संविधान की इतनी क्लासेज में बात कर रहे हैं, तो जो उसमें मसाले डाले गए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, वो अलग अलग कंट्रीज से लेके डाले गए हैं. तो उन कंट्रीज के बारे में देखते हैं. बेसिकली इस चैप्टर, अब इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग के पार्ट नहीं है. आई विल टेक द नेम ऑफ द कंट्री एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट थिंग वी हैव टेकन फ्रॉम दैट कंट्री. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, यूनाइटेड किंगडम. हमने इनसे क्या लिया है? हमने इनसे लिया है दैट प्रेसिडेंट एज ए नॉमिनल हेड, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, a parliamentary type of government, post of prime minister, bicameral parliament, council of ministers, provision of speaker in the Lok Sabha, legislation, citizenship, writs and rule of law. ये सारी चीज़ें हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है. अमेरिका से क्या लिया है? यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया है हमने? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of the judges of Supreme Court and High Court, एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ये हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है, अमेरिका से लिया है. फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया हमने? कनाडा. दिस ऑल थिंग कनाडा से लिया हमने. उसके बाद रेस्टोरेटरी पावर इन द सेंटर, कनाडा से लिया है. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये भी कनाडा से बाय सेंटर. एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि एडवाइस ले सकें सुप्रीम कोर्ट से, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द कनाडा. ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है हमने? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिया है. फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड लिया है, ट्रेड एंड कॉमर्स. कन्करेंट लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्करेंट लिस्ट पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, टिक कर लीजिएगा कि बहुत बार पूछा गया है. जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से. अब आयरलैंड से क्या क्या लिया गया देखते हैं. DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से लिया है. प्रेसिडेंट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सब हमने आयरलैंड से लिया है. अब क्या चीज़ें? फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? रिपब्लिक, हम वी आर रिपब्लिक, आई टोल्ड यू एक्सप्लेन द वर्ड ऑल्सो रिपब्लिक दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द फ्रांस. लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया है. सी, यहाँ लिखा हुआ है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस नहीं लिखा हुआ है. एग्जामिनेशन में एक बार कन्फ्यूज़ किया गया है, लिबर्टी को रिप्लेस कर दिया है जस्टिस से, और फिर कहा गया ये फ्रांस से लिया गया है, तो नो, उसे कट कर देंगे हम लोग. जस्टिस जो वर्ड ट्रैवल किया है इंडिया में, दैट इज फ्रॉम रशिया. अब रशिया की बात करते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से लिए हैं, और आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैव बीन टेकन फ्रॉम इन द प्रीएम्बल फ्रॉम रशिया. ठीक है. नाउ साउथ अमेरिका से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, इमरजेंसी पावर, फिर हमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारी सस्पेंड हो जाती हैं, एक्सेप्ट 2021, हमने जर्मनी से लिया है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से लिया है. फिर फेडरल स्कीम्स, अब देखो जो मैंने जब पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, दिस थिंग वी हैव टेकन फ्रॉम दैट सेम एक्ट. फेडरल स्कीम्स, रोल ऑफ फेडरल जुडिशरी, दैट इज ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन. सी, इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ से लिया गया है, लेकिन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वो हमने जर्मनी से लिया है, हुआ है. फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स we have taken from 1935. So that's all from today. We will end with a beautiful thought. Our greatest weakness lie in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. By Thomas Alva Edison. Thank you. See you in the next class.